Hello students, welcome back. So, in the last lecture, we just started with electromagnetic induction. In that we discussed about Faraday's experiment. Only one experiment we have discussed so far. So, we'll have a quick revision of whatever we discussed in the last lecture. Now, before you start further in this particular video, I am assuming that you will have gone through the first video, only then you are coming to the second video. पहला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा. सो लेक्चर 1 वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए. लेक्चर 1 में हमने ऐसे स्टार्ट किया था कि ऑर्स्टेड करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो फैराडे ने सोचा अगर वैसा हो सकता है तो रिवर्स भी होना चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट आना चाहिए. विद दिस एज एम, फैराडे स्टार्टेड परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट. द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट ही परफॉर्म वाज मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट. Now in magnet and coil experiment, we use a magnet and a coil, and following observations were made by Faraday. First, when the magnet is at rest, there was no deflection shown by the galvanometer. When north pole of the magnet is taken towards the coil, there is a deflection in one direction as long as the magnet is in motion. When north pole is taken away from the coil, again there is a deflection but in the opposite direction as long as the magnet is in motion. Same thing was observed when the south pole is taken towards the coil or the south pole is taken away from the coil. However, when the south pole is taken towards the coil, deflection is same as if the north pole is taken away from the coil. He further observed that deflection in the galvanometer increases when the magnet is moved faster, a stronger magnet is used, number of turns in the coil increases, and area of each turn also increases. Now to explain his observation, Faraday introduced a concept of magnetic flux. Now, according to Faraday, if you have a magnet, then in the surrounding region, magnet is going to produce magnetic field. We cannot see magnetic field. So in order to visualize or to draw the magnetic field, Faraday introduced the concept of magnetic lines of force. Now the number of lines of force passing normally, keyword is normally, the number of lines of force passing normally through a given surface is magnetic flux. Whereas the number of lines of force passing normally through unit area was called as magnetic induction. Now magnetic flux is given by the formula B vector dot A vector or B bar dot A bar, or you can say it is B into A into cos theta for single turn. If there are n number of turns, the same formula is phi is equals to NAB cos theta. एक important चीज हमने वहाँ पढ़ी थी कि थीटा याद रखना. Theta is the angle between direction of the magnetic field, मतलब B, and the normal drawn to the area. It is the angle between direction of the magnetic field and normal drawn to the area. So जब कभी भी आप थीटा की वैल्यू डिस्कस करते हो, so याद रखना थीटा B और नॉर्मल के बीच का एंगल है. तो हमेशा एरिया को नॉर्मल ड्रॉ करोगे, उससे आपको थीटा मिल सकता है. फिर फैराडे ने अपने ऑब्जर्वेशन को दो लॉ के फॉर्म में हमको बताया, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ. व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ? फैराडेज फर्स्ट लॉ आपको ये बताता है कि कौन से कंडीशंस में ईएमएफ इंड्यूस होगा. फैराडे का सेकेंड लॉ आपको बताता है कि कितना सारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो किस पर डिपेंड करता है. सो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स associated with a coil, an EMF is induced in the coil. I repeat, whenever there is a change in magnetic flux associated with a coil, an EMF is induced in the coil. What is second law? The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. So E is proportional to d phi by dt. This is what we had discussed in our last lecture, or in the first lecture you can see. Now in today's lecture we will discuss, देखो फैराडे के एक्सप्लेनेशन से हमको ये पता चला था कि नॉर्थ पोल जब पास गया तो डिफ्लेक्शन क्यों आया, साउथ पोल जब दूर गया तो डिफ्लेक्शन क्यों आया. पर डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन वैसा ही क्यों आ रहा था, नॉर्थ के पास जाने पर और साउथ के दूर जाने पर एक ही तरफ डिफ्लेक्शन क्यों आया. बेसिकली फैराडे के लॉ से हमको ये पता चलता है कि कब ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तब. कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है. पर ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, ईएमएफ कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ये फैराडे के लॉ से पता नहीं चलता है. आई रिपीट, फैराडे का फर्स्ट लॉ आपको बताता है कब ईएमएफ इंड्यूस होगा. फैराडे का सेकंड लॉ आपको बताता है कितना सारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर. बट फैराडे के लॉ से हमको डायरेक्शन का नॉलेज नहीं आता है. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को समझने के लिए हमको एक और लॉ पढ़ना है.
जिसको हम कहते हैं लेंस लॉ। सो ये वाला जो सेशन है इसमें वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट लेंस लॉ। सो फैराडेज लॉ आपको क्या बताते हैं? फर्स्ट लॉ, कब ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तब। सेकेंड लॉ बताता है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, d∅dt पर कौन से डायरेक्शन में होगा वो फैराडे के लॉ से नहीं पता चलता है। उसको समझने के लिए वी हैव टू स्टडी लेंस लॉ। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेंस लॉ के बारे में। अब लेंस का जो लॉ है वो एक छोटी सी बात पर बेस्ड है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंस लॉ किस पर बेस्ड है? लेंस को अपने लॉ की आइडिया कहां से आई? तो उनको ये आइडिया आई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कैसे सर? तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। अगर मैं किसी सर्किट में बैटरी कनेक्ट करता हूँ, बैटरी, और फिर जब करंट फ्लो होता है तो किसी को डाउट नहीं आता है या किसी को मैजिक या चमत्कार नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है कि बैटरी की केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पर हमारा जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था? वाज देयर अ बैटरी यूज? नो। हमने सिर्फ मैग्नेट को मूव किया था और डिफ्लेक्शन आया था। याद आ रही बात कि मैग्नेट के मोशन से डिफ्लेक्शन आया, मतलब वहां पर डिफ्लेक्शन आया यानी कि करंट आया, वो करंट आया यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आई? इस बात को फैराडे ने सोचा। अब फैराडे के एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो आप शायद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ोगे या ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आप 11th स्टैंडर्ड में भी किया होगा या स्कूल में भी किया होगा। अगर आपके पास कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, और इसमें से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आई होप आपको ये पता है, ये जो सेंस मैंने ड्रॉ किया है दिस इज क्लॉकवाइज सेंस। सो अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल में से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है, सो ये मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। सो इफ अ कॉइल कैरीज करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट एक्ट एज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अच्छा, और अगर किसी कॉइल में से करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, उल्टा, सो इट एक्ट एज नॉर्थ पोल। और अभी भी अगर आपको डाउट है तो यू कैन रिफर टू दिस करंट कैरिंग कॉइल एज अ डाइपोल। करंट कैरिंग कॉइल एज डाइपोल, 11th स्टैंडर्ड मैग्नेटिज्म चैप्टर। सो करंट कैरिंग कॉइल एज अ डाइपोल, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका एक तरफ का फेस मैग्नेट का नॉर्थ पोल बनता है और दूसरी तरफ का फेस मैग्नेट का साउथ पोल बनता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लो कि करंट कैरिंग कॉइल है, ये इसके दो फेस है, एक जो आपकी तरफ है और एक जो मेरी तरफ है। तो इसमें होता ही है कि अगर इसमें से करंट पास करेंगे तो ये पूरा कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब हम जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसके जो दो फेस है, आगे वाला फेस और पीछे वाला फेस, इनमें से कोई भी एक नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा और एक कोई साउथ की तरह बिहेव करेगा। सवाल ये उठता है कि कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा और कौन सा साउथ पोल बनेगा। अब वो वाला फेस जहां से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज, दैट विल एक्ट एज साउथ पोल, और जहां करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा दैट विल एक्ट एज नॉर्थ पोल। ठीक है, सो यू कैन रिफर टू दिस टॉपिक एंड इट विल बी वेरी क्लियर। सो अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो उसके दो फेस है, आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसे कि आप लेते हो। अगर कोई एक फेस साउथ बन रहा है तो उल्टा वाला, पीछे वाला क्या बनेगा? नॉर्थ। हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ है? तो उसका आंसर है बच्चों, a phase that is having current in the clockwise direction will act as south pole, और वो फेस जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में will act as north pole। ये बहुत जरूरी है लेंस लॉ को समझने के लिए। ठीक है, वापस हम लेंस लॉ क्यों पढ़ते हैं? हमको डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है, उसको समझने के लिए हम लेंस लॉ पढ़ते हैं। लेंस को ये आइडिया आई कहाँ से? सिंपल सी बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, अगर हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसके बारे में लेंस सोचते थे। अब लेंस का एक्सप्लेनेशन क्या था? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा, देखना बच्चों ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये बुक एक कॉइल है
और ये जो डस्टर मेरे हाथ में वो एक मैग्नेट है। सो जाहिर सी बात है इस मैग्नेट में दो पोल है, एक नॉर्थ और उस तरफ जो होगा वो साउथ। अब फैराडे ने क्या देखा था, फैराडे ने कि जब नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेकर के जाओगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। जब नॉर्थ पोल को दूर लेकर के गए तो भी इसमें डिफ्लेक्शन आया, बट उल्टा वाला आया। ये हमको फैराडे ने बताया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब नॉर्थ पोल पास गया तो डिफ्लेक्शन आया, जब नॉर्थ पोल दूर गया तो भी डिफ्लेक्शन आया। ये बताया फैराडे ने। नॉर्थ पोल पास गया तो डिफ्लेक्शन एक तरफ आया, नॉर्थ पोल दूर गया तो डिफ्लेक्शन अपोजिट आया। ऐसा फैराडे ने देखा, एक्सप्लेन नहीं किया। यही एक्सप्लेनेशन कौन दे रहे हैं हमको, लेंज। किसके बेसिस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज का मानना था कि अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे, तो बहुत ही सिंपल येट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन। सो गिव योर 100% अटेंशन। सो ये नॉर्थ पोल, ये कॉइल, जब मैं नॉर्थ पोल को पास लेकर के जा रहा हूं तो यहां पर करंट आया, बराबर, ये फैराडे ने बताया। अब लेंज ने कहा मुझे लगता है कि जब नॉर्थ पोल पास जाएगा तो यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ऐसा क्यों, सुनते अच्छे से। लेंज ने ऐसा बोला कि मुझे ऐसे लगता है कि जब नॉर्थ पोल पास जाएगा तो यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। पूछो क्यों, बताते। सो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो ये जो कॉइल का चेहरा है वो कौन से पोल की तरह बनेगा, नॉर्थ पोल। अब बच्चों बताओ कौन सा पोल पास जा रहा है, नॉर्थ। ये खुद भी क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ और नॉर्थ में अट्रैक्शन की रिपल्शन, रिपल्शन, यानी ये जो नॉर्थ पोल बना, कैसे बना सर, ये तो कॉइल था। मैग्नेट के मोशन से करंट आया और वो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया, इसलिए ये करंट कैरिंग कॉइल हुआ। और अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो इसमें दोनों पोल आएंगे, इस तरह बनेगा नॉर्थ पोल। अब इसमें जो नॉर्थ पोल है, इसमें जो नॉर्थ पोल है वो इसके नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपोज करेगा या रिपेल करेगा। तो ये जो कॉइल है जिसमें अभी करंट जनरेट हुआ वो ये नॉर्थ पोल को पास आने नहीं देगा। क्यों सर, रिपल्शन होगा। अच्छा, अगर ये पास आने नहीं देगा तो माने कि ये रुक जाएगा। और सोच अगर ये रुक गया, याद कर फैराडे का लॉ, अगर ये रुक गया तो करंट गायब हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें करंट आता रहे तो ये नॉर्थ पोल के रिपल्शन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। और आप ये जो वर्क कर रहे हो वो मैकेनिकल एनर्जी है और ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ऐसा लेंज ने लॉजिक लगाया। मैं फिर से समझाता हूं। जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास जाएगा तो इसमें करंट आएगा, ये फैराडे ने बताया। लेंज कहते हैं कि ये करंट एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। क्यों, अगर यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन होगा। सो ये दो पॉसिबिलिटी, या तो मैग्नेट रुक जाएगा, पर अगर मैग्नेट रुक गया तो करंट जीरो हो जाएगा, जबकि फैराडे ने कहा कि करंट जीरो नहीं होना चाहिए। सो हमको इस मैग्नेट को मूव करने के लिए we have to do some work against the force of repulsion. So whatever work I am doing, that is a mechanical energy. This mechanical energy is getting converted into electrical energy. मेरी बात समझ में आई? फिर से एक बार कैसे बोलेंगे, जब हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेकर के जाएंगे तो कॉइल में करंट आएगा, ये फैराडे ने बताया। लेंज कह रहे हैं कि ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। क्यों, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो ये खुद भी क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में देयर विल बी रिपल्शन। अगर आपको चाहिए कि करंट इंड्यूस होता रहे, करंट कॉन्स्टेंटली इंड्यूस होता रहे, देन यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। और आप ये जो वर्क कर रहे हो वो मैकेनिकल एनर्जी है, और ये मैकेनिकल एनर्जी क्या जनरेट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझा? अच्छा, अब मैं दूसरे के साथ समझाता हूँ। अब सोचो बच्चों क्या हुआ, ये साउथ पोल है, साउथ पोल। अच्छा, वो दूसरा, जब मैं नॉर्थ पोल को दूर लेकर के जाऊंगा तो फैराडे के हिसाब से अभी भी यहाँ करंट आएगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब नॉर्थ पोल दूर गया तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज हुआ क्योंकि फ्लक्स कम होगा, तो जो भी है फ्लक्स चेंज होगा तो करंट आएगा, ये फैराडे ने बताया। अब करंट कौन से डायरेक्शन में आएगा ये लेंस बताने के लिए है। लेंस हमको कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। क्यों सर क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि अगर करंट क्लॉकवाइज आएगा तो ये साउथ पोल बनेगा। अब सोचिए कौन सा पोल है, नॉर्थ, और ये क्या बन गया, साउथ। तो इनके बीच में अट्रैक्शन की रिपल्शन, अट्रैक्शन, साउथ और नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन। तो मैं नॉर्थ को दूर लेकर जा रहा हूं पर ये खुद क्या बन गया, साउथ। तो ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट। सो अगर ये अट्रैक्ट करेगा दैट मींस आई हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट इज आई हैव टू डू सम वर्क। सो अगेन व्हाटएवर वर्क आई एम डूइंग इज गेटिंग कन्वर्टेड टुवर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अब बच्चों आप घर बैठे बैठे दिमाग लगाओ, अगर मैं साउथ पोल को पास लेकर के जाऊं, प्लीज पार्टिसिपेट करो, अगर मैं साउथ पोल को पास लेकर के जाऊं तो इसमें से फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो यहाँ पर करंट भी आएगा, फैराडे ने बताया। अब लेंस कह रहे हैं कि जब साउथ पोल पास जाएगा तो ये खुद भी साउथ पोल बनेगा। क्यों? ताकि साउथ और साउथ में रिपल्शन हो, ताकि आपको वर्क करना पड़े रिपल्सन के अगेंस्ट, और वो वर्क मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप सोचो, जब साउथ दूर जाएगा तो फ्लक्स आएगा, चेंज होगा, बराबर, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, बराबर, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, बराबर। करंट कैसा आएगा? साउथ दूर जा रहा है तो ये दूर जाने से रोकेगा, तो साउथ को दूर जाने से रोकना तो खुद क्या बनेगा? नॉर्थ। नॉर्थ के लिए करंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो करंट के डायरेक्शन आ रहे थे उसको लेंस अपने लॉजिक से एक्सप्लेन कर पा रहे थे। जो मैंने हवा में बातें की वो मैं बोर्ड पर ड्रॉ करके आपको समझाता हूं, आप प्लीज ध्यान से सुनिए। सो वॉट एवर आई एक्सप्लेन, द सेम थिंग आई एम गोइंग टू रिपीट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, प्लीज पे अटेंशन। सो अकॉर्डिंग टू लेंस, मान लीजिए कॉइल है जो बुक में रात में थी वो, और ये मैग्नेट है। जब मैं नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेकर के जाऊंगा तो इसमें से फ्लक्स बढ़ेगा, जो भी है बढ़ेगा या कम होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगा। अब वो करंट ऐसा आना चाहिए कि आपको वर्क करना पड़े ताकि आपकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। अब नॉर्थ जब पास आ रहा है तो वर्क कराने के लिए खुद भी नॉर्थ पोल बनना चाहिए। सो जो नॉर्थ पोल बनने के लिए करंट कैसा आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो जब नॉर्थ पोल पास जा रहा है तो कॉइल खुद क्या बन रही है? नॉर्थ पोल, ताकि उसको पास आने से रोके, ताकि आपको वर्क करना पड़े, ताकि आपकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। सेम है बच्चों, जब ये नॉर्थ पोल दूर जाएगा, जब ये नॉर्थ पोल दूर जाएगा, सो अगर ये मैं कॉइल वापस से वैसे ड्रॉ करूं, सो नॉर्थ पोल विल गो अवे, सो फ्लक्स विल डिक्रीज, जो भी है फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो फैराडे के लॉ के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा। जो करंट इंड्यूस होगा वो ऐसा होना चाहिए कि नॉर्थ को दूर जाने से रोके। क्यों सर? ताकि आपको वर्क करना पड़े। अब नॉर्थ को अगर दूर जाने से रोकना है तो खुद क्या बनेगा? साउथ पोल, और साउथ पोल बनने के लिए करंट कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। सो जब नॉर्थ पास आ रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ रहा है, जब नॉर्थ दूर जा रहा है तो करंट कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। अब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बच्चों देखते साउथ के साथ क्या लिखेंगे। सो ये कॉइल और ये साउथ पोल। अच्छा, जब मैं साउथ पोल को दूर लेकर के जाऊंगा तो क्या होगा बोलो? साउथ पोल दूर जाएगा तो इसमें से फ्लक्स कम होगा, मैग्नेट दूर जा रहा है तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो करंट भी इंड्यूस होगा। अब यहाँ पे करंट कैसा आएगा? करंट ऐसा आना चाहिए कि साउथ को दूर जाने से रोके। क्यों? ताकि आपको वर्क करना पड़े, ताकि मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब साउथ को अगर दूर जाने से रोकना है तो खुद क्या बनना चाहिए? साउथ को दूर जाने से रोकना है यानी साउथ को अपनी तरफ खींचना है तो खुद क्या बनना चाहिए? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बनने के लिए करंट कैसा आना चाहिए? नॉर्थ पोल बनने के लिए करंट आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पर ही लेंस कॉन्फिडेंट थे कि नॉर्थ के पास जाने पर और साउथ के दूर जाने पर सेम तरह से कॉइल बिहेव कर रही है, इसलिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन सेम था। हाँ, मजा है ना? इसीलिए लेंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप ये बताओ, जब साउथ पोल को मैं पास लेकर के जाऊंगा, जब मैं साउथ पोल को पास लेकर के जाऊंगा तो बोलो क्या होगा? इसमें से फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा यानी फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो करंट भी इंड्यूस होगा। अब ये करंट कैसा आएगा? ये करंट ऐसा आएगा कि वो साउथ पोल को पास आने से रोकेगा। साउथ को अगर क्यों रोकेगा? ताकि आपको वर्क करना पड़े, ताकि मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउथ को पास आने से रोकना है तो खुद साउथ बनना चाहिए, खुद को अगर साउथ बनना है तो करंट कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। सो नॉर्थ का दूर जाना तो भी क्लॉकवाइज, साउथ का पास आना तो भी कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज। यानी लेंस का जो लॉजिक था वो परफेक्टली वैलिड था कि डायरेक्शन अगर आप जानना चाहते हो तो क्या यूज करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इवन इन बोर्ड एग्जाम दे आस्क लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट? So the answer is Lenz law is based on law of conservation of energy. ये मैंने आपको समझाया कि लेंस लॉ क्या कहना चाहता है, उसका स्टेटमेंट अब तक नहीं आया। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, स्टेटमेंट बनाते हैं। लेंस लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन।
किसका? इंड्यूस्ड ईएमएफ या तो इंड्यूस करंट। तो मैं ऐसे बोलूं इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमेशा ऐसा होगा कि अगर नॉर्थ पोल पास आएगा तो पास आने से रोकेगा, नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो दूर जाने से रोकेगा, साउथ पोल दूर जाएगा तो खुद दूर जाने से रोकेगा, नॉर्थ बन के अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल पास आएगा तो पास आने से रोकेगा। यानी वो हमेशा क्या करता है? वो हमेशा रोकता है, वो हमेशा अपोज करता है, वो हमेशा अपोज करता है। किसको अपोज करता है? जो भी प्रोड्यूस करेगा उसी को अपोज करेगा। ध्यान से सुनना मैं जो क्या कह रहा हूं। ये यहाँ करंट आने का रीजन क्या था? नॉर्थ पोल का पास जाना, तो खुद नॉर्थ पोल बन के इसको अपोज कर रहा है। यहाँ करंट आने का रीजन क्या था? नॉर्थ पोल का दूर जाना, तो खुद साउथ पोल बनकर उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके मोशन को अपोज कर रहा है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा क्या करता है? इट अपोजेस किसको? इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। जो उसको प्रोड्यूस करेगा उस रीजन को, उस कॉज को ही वो अपोज करता है। तो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ? लेंज लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ by electromagnetic induction is such that the induced EMF opposes the cause which produces it. I repeat the statement. और जब आप घर पर ये वीडियो देख रहे हो तो लिख भी लो, the direction of induced EMF। अच्छा, लेंज लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो आपका स्टेटमेंट स्टार्ट कैसे होगा? लेंज लॉ states that the direction of induced EMF by electromagnetic induction is such that the induced EMF opposes the cause which produces it. I repeat, Lenz law states that the direction of induced EMF by electromagnetic induction is such that the induced EMF opposes the cause which produces it. Opposes the cause which produces it. जिस रीजन से वो प्रोड्यूस होगा उस रीजन को ही वो अपोज करेगा। अब इसको समझाने के लिए कुछ और एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो मेरे आपसे बात करने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो जो ईएमएफ जनरेट होगा मुझे बात करने से रोकेगा। आपके यस सर बोलने से अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा आपको यस सर बोलने से रोकेगा। फैन के रोटेट होने से अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फैन को रोटेट होने से रोकेगा। कार की स्पीड बढ़ने से अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कार की स्पीड को बढ़ने से रोकेगा। लाइट ऑन होने से अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो लाइट को ऑन होने से रोकेगा। सो हमेशा इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है? वो उस रीजन को ही अपोज करेगा जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। सो अगर ये मैग्नेट मूव होगा तो ईएमएफ आएगा, हाँ, तो इसके मोशन को वो अपोज करेगा। वो हमेशा क्या करेगा? इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। इसलिए जब आप एंट्रेंस के क्वेश्चन करोगे तो हमेशा क्या ढूंढोगे? ईएमएफ आने का कॉज क्या है, ईएमएफ आने का रीजन क्या है। जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उस रीजन को ही अपोज करेगा जिस रीजन से वो प्रोड्यूस होगा। वॉट एवर मे बी द रीजन। मेरे अगर ऐसे हाथ हिलाने से ईएमएफ इंड्यूस होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा मेरे हाथ हिलाने से मुझे रोकेगा। ये बात, मेरे चलने से अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा मुझे चलने से रोकेगा। इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। जिस रीजन से वो प्रोड्यूस होगा उसी को वो अपोज करेगा। सो आई रिपीट द स्टेटमेंट फॉर द लास्ट टाइम। Lenz law states that the direction of induced EMF by electromagnetic induction is such that the induced EMF opposes the cause which produces it. It opposes the cause which produces it. अब सुनना बच्चों ध्यान से। हमने जब फैराडे का सेकेंड लॉ पढ़ा था, सो ऐसे पढ़ा था, E is proportional to d phi by dt। यहां पर अगर मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूं तो k d phi by dt। पर ऐसा देखा जाता है कि अगर सब कुछ एसआई सिस्टम में है, सब कुछ अगर एसआई सिस्टम में है, यानी ये वोल्ट में है, ये वेबर में है और ये सेकंड में है, ऑल द क्वांटिटीज आर इन एसआई यूनिट, तो k1 आता है। सो नाउ वी हैड E is equals to d phi by dt। ये फॉर्मूला है इस चैप्टर का सबसे पहला, दूसरा E is equals to d phi by dt। अगर ये दूसरा तो पहला क्या था? phi is equal to NAB cos theta। रिमेंबर दैट। सो अगर ये सारी क्वांटिटीज एसआई यूनिट में है तो k की वैल्यू क्या होगी? 1। सो हमारे पास फॉर्मूला था E is d phi by dt।
अब लेंस लॉ की वजह से ये हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी। माइनस साइन क्यों? माइनस साइन ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को बहुत मस्ती है, वो हमेशा उस रीजन को अपोज करता है जो उसको प्रोड्यूस करता है। फ्लक्स अगर इंक्रीज होने से ईएमएफ होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोकेगा। फ्लक्स के डिक्रीज होने से अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसको डिक्रीज होने से रोकेगा। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ इंड्यूस होने का रीजन क्या था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो लेंस लॉ क्या कहता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो भी राइट है, बट जब आप एमसीक्यू करोगे तो क्या याद रखना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स बढ़ेगा तो बढ़ने से रोकेगा, कम होगा तो कम होने से रोकेगा। सो एक आखिरी बात, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बताता है कब ईएमएफ इंड्यूस होगा? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडे सेकंड लॉ बताता है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। थर्ड लॉ यानी कि लेंस लॉ क्या बताता है आपको? कौन से डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, कौन से डायरेक्शन में? वो ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। The direction of induced EMF by electromagnetic induction is such that it always opposes the cause which produces it. जिस रीजन से वो प्रोड्यूस होगा उस रीजन को ही वो क्या करेगा? अपोज करेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंस लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंस लॉ। तो स्टेटमेंट तो मैं बोल चुका हूँ, एक्सप्लेनेशन के लिए दो डायग्राम आप बना सकते हो। कैसे लिखोगे? When north pole is taken towards a coil, flux through the coil will increase. बराबर? Therefore, by Faraday's law, an EMF is induced. But according to Lenz's law, the cause must be opposed. Therefore, the face of the coil should act as north pole. चाहिए तो फिर से बोलता हूँ। When north pole of the magnet is taken towards the coil, flux through the coil will increase. The cause, reason, the cause of increase in flux is motion of the magnet towards the coil. By Lenz's law, the cause must be opposed. For that, the face of the coil should also act as north pole. Hence the current is induced in anti-clockwise direction. एक एक स्टेप में आप समझोगे तो इजी है। When north pole is taken towards the coil, coil में से फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ने का रीजन क्या है? मैग्नेट का मोशन कॉइल की तरफ। By Lenz's law, cause must be opposed. वैसा होने के लिए coil should act as north pole. और उस डायरेक्शन में या उस वक्त करंट कैसा आना चाहिए? एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे? When north pole of the magnet is taken towards the coil, flux through the area of the coil will increase. The cause of increasing flux is motion of the north pole towards the coil. By Lenz's law, the cause must be opposed. For that to be possible, the face of the coil should act as north pole. अब इसका ट्राई करो बैठे बैठे। When north pole is taken away from the coil, flux through the coil will decrease. The cause of decreasing flux is motion of the north pole away from the coil. By Lenz's law, the cause must be opposed. For that to be possible, the face of the coil should act as south pole. In that case, current is induced in the clockwise direction. It's very, 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 very important. Simple है। जिस रीजन से EMF इंड्यूस होगा उस रीजन को क्या करेगा? अपोज। So this is about Lenz's law, जो इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। I hope you all have understood it. So next सेशन में हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम Lenz's law को थियोरेटिकली प्रूफ करेंगे। Okay? Thank you so much.